topic that we are all here to discuss and take this cause forward, and obviously with the headmaster here who will be cracking the whip and seeing to it that we all do it well. I don't want to take this moment away from you, so I want you to continue with what you're saying. I'd like to extend a warm welcome to all the guests here, family, friends, well-wishers, members of the media, and of course my seniors, my colleagues, friends. I guess we all know we all gathered here for a certain cause, and that touches us all so deeply. It starts obviously with depression. Everyone has ups and downs in life, but there are different ways to deal with it. There are the stronger ones who deal with it, and there are ones who just collapse and scatter away and just let go of their lives. And that, I think, is something that can be prevented, can be helped, and not only through various means, but it also requires the support of family, friends who realize that at that very sensitive hour, this person needs to be taken care of. I think this book is very important for everybody to read, because it's not only a lesson on how to do, what to do, why to do, but it actually gives you a true meaning that why, and that death is actually not the answer. There's a full life ahead for you to live, stand up and walk again. And I've lived with that mantra through my life, through my ups and downs, picked up the pieces and put them together and walked again. And thankfully, with love and support of friends, of my family, that they've always been a backbone. But there are some people who are not lucky enough. And so what do you do? So it's basically, as a celebrity, I would like to take this cause forward. I'd like to talk about it. When you hear the statistics from none other than the boss, you'll be really shocked to know that I think it's a very, very scary, I'll leave all that for you to do. I don't want to jump into your this thing and start rattling off what we discussed. But most definitely, as a celeb, I'd like to take this cause forward. I'd like to help people. This book also kind of gives you an insight on to recognize signs of people around you, that in case you notice someone who you can see is going towards the depression, going towards that. So it's very important for us to be vigilant, to be alert, and yes, carry the message forward. So as a celeb, I'd like to spread awareness about this, talk about it, make people aware, whether it's on social media or all the means that I have in my capacity to take this cause forward. I'd like to thank and congratulate Dr. Anjali Chhabria here for, it's not only just a book, I think it's a noble cause that you've taken ahead, and I wish you all the very success and all the very best, not only because you are what you are, but you're a wonderful person, you're beautiful inside out. Thank you so much. Thank you to each one of you. Archana, Bittu, you all are here. Come. My dad wants to say something. He never talks. I already want to say. ये विनोद हो गया तो चुप ना विनोद हो गया हो गया तो चुप ना विनोद विनोद हो गया विनोद अरे ओ दादा मैडम से मैम इकडे क्या नहीं यहाँ से जाएंगे यहाँ पे
Thank you. अभी तुमको का बारी, तुमको का मैं कब से कर रही हूँ। बाइट इधर है ना? हाँ इधर इधर Yeah. Wait 1 second, I think someone's joining. There's Sumit Varma. चलो ठीक है, no problem. हाँ कोई बात नहीं, चलो। जी रवीना जी क्या कहना चाहेंगे? बुक लॉन्च पे डेट इज बहुत आई थिंक ये जो कॉज है ये बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो जवान बच्चे कभी सुसाइड कमिट कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 10 में से जो सुसाइड्स होती हैं उसमें से 6 हाउसवाइफ्स होती हैं और कहीं ना कहीं औरतों की संख्या ज़्यादा है सुसाइड करने का। तो एज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि ये बढ़ते जा रहा है प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं हम लोग क्लिनिकली इस डिप्रेशन को वी आर नॉट डीलिंग विद इट क्लिनिकली। तो ये एक नॉर्मल मतलब आम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अरे सुसाइड कमिट कर लिया, लेकिन ये एक एक्चुअली क्लिनिकल इशू है। Just let them join in, no? Please join in. I will not repeat everything. रीमा, you move ना। मैं एक चीज बोलूं? थोड़ा एक कदम पीछे हो जाओ, मेरे को जगह दो। हाँ, ये बेटर है। या डन। Thank you. एक जन घूम दे दो एक के हाथ में। घूम ले लो This side is behind and this side is the front. That's fine, right? Or should I put both? Behind? No, this is no. Okay, ready? रेडी गाइस? रेडी। रवीना जी क्या कहना चाहेंगे? बुक लॉन्च पे आई है। हे गाइस साइलेंट। अरे गाइस साइलेंट। जी रवीना जी रेडी। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ऐसा एक बुक आना वो भी एक डॉक्टर के ज़रिए लोगों तक पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। कैमरा नीचे है तो क्या? भैया आपका हो गया तो मैं बोलूँ यार। शांत रहो, शांत। रोल शुरू करो यार। ये जिसको नहीं मिला ट्रांसफर ले। बेटा यू नो व्हाट, यू गिव दिस माइक टू सुमित। आप पीछे आ जाओ तो वो कैमरा वाले को जगह हो जाएगी। थोड़ा जगह बना दो। हाँ घुस जाना नीचे से। ओके नो प्लीज डोंट हिट ईच अदर, प्लीज डोंट फाइट, रिलैक्स गाइस, बिहेव योरसेल्व्स। या मैम रेडी। नहीं इनको नई जगह मिली हो, पीछे धक्कम धक्की हो रही है। 2 मिनट भैया ये आपका नहीं यूज हो रहा है ना। रेडी ओके ओके मैम स्टार्टिंग सुमिता You have to continue, otherwise this will not fighting you. Okay. Rina, thank you so much for coming here, even though there was some I will not repeat. I will not. I'm sorry. I have to go. I'm very tired. thank you so much for coming here. Some words for Anjali ji and the book. I think बहुत ज़रूरी था कि ऐसी एक किताब लोगों तक पहुँचे, लोगों के ज़रिए पहुँचे। एक डॉक्टर के ज़रिए लिखी हुई किताब बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो सुसाइड एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है जो एक ऐसी आम प्रॉब्लम नहीं है बट हैज़ टू बी ट्रीटेड क्लिनिकली। एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, जो लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों। आजकल आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में थोड़ा कम मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़ी बाप की डांट पड़ जाती है, पिता की माता की डांट पड़ जाती है, तो एक ये गंभीर स्टेप उठा लेते हैं जो मतलब अच्छी बात नहीं है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक होप जो मिलना चाहिए ऐसे केसेस में। अगर आप देखेंगे तो 10 में से 6 जो संख्या है वो एक्चुअली औरतों की है जो सुसाइड कमिट करती हैं। आउट ऑफ द 10 सुसाइड केसेस दैट कम एंड दे आर मोस्टली हाउसवाइफ्स। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि एक ऐसी किताब आए जो आपको एक होप दे, एक आपको स्टेप बाय स्टेप जो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको कैसे साइंस रिकग्नाइज करने चाहिए कि आपका कोई फैमिली मेम्बर डिप्रेस है, आपकी कोई दोस्त डिप्रेस है, उनकी आप कैसे मदद करें। सो दिस बुक का टाइटल सेज इट ऑल दैट डेथ इज नॉट द आंसर, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। रवीना, इसके अलावा हाल ही में दीपिका ने डिप्रेशन में ऐसा गई हूँ
कोई आपको याद आ रहा है? मैं ये पूरे कमरे में जब किसी के ऊपर भी हाथ रख दूँ ना, ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हों। तो और जिन्होंने लेकिन हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को समेट लेते हैं, उठते हैं और वापस चलते हैं, और कुछ लोग हैं जो थोड़े वीक से होते हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स के से नहीं डील कर सकते हैं, हार मान जाते हैं। तो ये एक सबकी ही लाइफ में ऐसे मुकाम तो आते ही हैं, किसी की ऐसी लाइफ नहीं है जो बिगनिंग से एंड तक खुशहाल ही रही हो। रवीना, आप डिप्रेशन को कैसे मतलब ओवरकम करती है? आपके ऊपर कोई डिप्रेशन हो? ये बहुत ही लंबा आंसर है, एक बार जब साथ बैठेंगे तब। बट आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है टू रियलाइज़ के ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड जो आपको दिया है ऊपर वाले ने, आप वो अपने ब्लेसिंग्स गिनिए, ये कि जो आपके पास नहीं है। एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं तो ऐसे समझती हूँ कि ऊपर वाले ने एक छत दी है, सामने थाली में खाना पड़ा है, पेरेंट्स का प्यार है, और क्या चाहिए? पेरेंट्स का आशीर्वाद है, और ज़िंदगी में और क्या चाहिए किसी को? Lots of people coming out to accept this situation of theirs. Do you think this is encouraging and will set an example? Of course it does. I think as celebrities we should be as honest and as human to show people that सबको दर्द होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं हम पत्थर के बने हुए हैं। सबको दर्द होता है, सबको महसूस होती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे अपनी कठिनाइयों को फेस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।